Okay. Hello guys. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Jamil. So today we are going to further discuss this essay, politics and English literature. Politics and the English language. Okay. First of all, I'm sorry. First of all, there is a word irony. It's more like ironical. Okay. Irony is sort of to highlight one thing. See, there are three types of ironies. One is situational irony. Okay. Another is Socratic irony. Okay, the first irony is situational, which we are going the first one, which we are going to discuss is situational. Another is Socratic. The third one is dramatic. Okay, the third one is what? Dramatic irony. Now, basically, Socratic irony is the easiest one, where you show your ignorance and like try to ask repetitive questions to reach a certain conclusion which you want. Okay, to reach a certain point. Like you keep on asking questions, like feigning ignorance, and then when you slowly ask and come to the conclusion which you want. This is what Socratic irony is. Okay, situational, Socratic, and another one is dramatic irony. Another one is what? Dramatic irony. So basically, dramatic irony is it's like Romeo and Juliet. Okay, like Romeo and Juliet. Basically, in Romeo and Juliet, they are expected to live a happier life together, but in the end, this didn't happen. The ending was not as expected. So basically, and another one is situational irony, like something which is in contrast to in contrast to what is expected. Okay, a striking reversal of what is expected or intended. Okay, intended. So basically, like a person sidesteps a pothole. Pothole is basically something like this. Okay, in the road. Okay, the holes in the roads. Okay, so pothole, he sidesteps to avoid injury, and in doing so, he steps into another pothole and injures himself. Okay, so basically themselves. Okay, so basically this is what is irony. Okay, and a person sidesteps a pothole to avoid injury, and in doing so, steps into another pothole and injures. Okay, himself or herself. So now basically now, there is one thing that is a common mistake. Okay, there is a common mistake. Okay, one thing is ironic, and another thing is coincidental. We are This word is very much misused. Okay, and often used in the pretext where there is coincidence of something. Okay, when there is coincidence of something. So there is a difference between irony and coincidence. Okay. All right, there is a difference. Just give me a minute, okay?
Okay. I am extremely apologetic for the delay. Okay. Sorry, I had a bit of. But okay, I'm very sorry. Sorry, I can't. All right. So basically, known as irony. Another thing is known as word Socratic irony. And thirdly, there's a dramatic irony. I gave examples. Okay. Gave you pretty much of examples. Now, let's regress. Now, what is satire? What is satire? Basically, satire is sort of, let's see, if I try to make fun of somebody, okay, if I use humor, okay, okay, let's see, the context which we are considering is your political issues, contemporary issues. Contemporary means present day important issues, okay, issues of significance. So now contemporary issues, I'm considering what contemporary issues. Now these contemporary issues, okay, these contemporary issues, I am basically, this is the context, okay? Okay, apologies, I should like put the line here. Okay, this is satire. This is basically satire. This is the context of what? Contemporary issues. First of all, I take it as a context. What do? I take it as a context. Now, another thing. Basically, I consider contemporary issues. In these, what do I do is another issues, okay? Political issues and anything. I use irony, okay? I use irony, which I told you. Humor, which means something funny, okay? Like hilarious, humor, and also I use exaggeration. What do I do is I use exaggeration to highlight these contemporary like political and topical issues. Okay, I use these. Orwell in his essay is using these things, irony, humor, exaggeration to highlight these contemporary issues. Now, it's binding on you, it's imperative that you give examples with it. Okay, you give examples with it. Okay, I will point out for you when the right time comes. Okay, ठीक है. So basically, this is your irony, humor, exaggeration. I do everything. I use every of the tool. Now let's progress. Let's learn and learn and learn. Secondly, Orwell uses empirical evidence. Okay? Orwell uses what? Empirical evidence. Empirical evidence is what you see and then you write it. Orwell uses empirical evidence. Okay, what he does is that he highlights the present day examples to tell how language is manipulated, folded as per the system. सही है हम language को कैसे manipulate करते हैं as per the सिस्टम के हिसाब से बेसिकली हम कैसे लैंग्वेज को घुमाते हैं कैसे लैंग्वेज को मैनिपुलेट करते हैं वो एग्जाम्पल्स भी देता है देयर इज एन एम्पेरिकल एविडेंस ओके सो एम्पेरिकल एविडेंस क्या था बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेरिकल एविडेंस पहली बात तो हाउ लैंग्वेज इज मैनिपुलेटेड एंड फर्दर मोर ही गिव्स एग्जांपल्स ऑफ jargons okay metaphors which are अगली ओके विच आर अगली और उसमें जो इलेबरेशन है वो लिख दो आप सही है jargons metaphors वो जो उसने एग्जाम्पल दिया अगली लॉस ऑफ विविडनेस
सही है, लॉस ऑफ विविडनेस। तो वो लॉस ऑफ विविडनेस से क्या होता है फिर उसने आगे खुद ही बताया हुआ है ऑरवेल ने। वो एग्जाम्पल्स देके समझाता है, वो क्या, जैसे एक्लीज हील, वो एग्जाम्पल देके बात को एक्सप्लेन करता है। और ऊपर से ही मेंशन सम ऑब्स्ट्यूज, ये जो समझने में मुश्किल होती है, obstruse text. Okay, in these obstruse texts, what he does is he tells that how far writers cannot convey their context properly because of the language they use. Okay, because of the language they use. तो ये obstruse text हम जिन्हें कहते हैं। और एक और बात होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इथोस और पैथोस। ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इथोस और पैथोस। इथोस और पैथोस का मतलब होता है, एक होता है मोड ऑफ परsuasion, एक तरीके से समझना, ये एरिस्टोटल का आइडिया था। ये तो अब हम कैसे करते हैं explain देखो इसके बाद हम क्या करते हैं बात समझने की कोशिश। एक होता है इथोस, ये एक कॉन्सेप्ट किसका होता है, इथोस का। पहला कॉन्सेप्ट है वो होता है इथोस, यानी तीन कॉन्सेप्ट होते हैं परसुएशन के। फिर होते हैं लोगो, और फिर होते हैं पेथो। सही है। दिस वे यू ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ व्यू, यू ट्राई टू परसुएड जो आपकी बात सुन रहा है, यू परसुएड थ्रू, ये एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था, यू परसुएड थ्रू इथोस, logos, and then your pathos. Okay, you pursue। तो ऑरवेल ने ये यूज किया है, देखो ऑरवेल ने इन्हीं को ही यूज किया है, इन्हीं आइडियाज को ही यूज किया है, इथोस, पैथोस और लोगोस। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, इथोस, पैथोस और लोगोस में मैं तुम लोगों को अब कोई डिटेल देता हूँ। दिस इज एन आर्ट ऑफ परसुएसिव राइटिंग। ओके, तो पैथोस किसको हम कहते हैं, पैथोस एक रैट्रिकल टेक्निक है। किस कौन सी टेक्निक है, रैट्रिकल टेक्निक, रिटोरिकल टेक्निक। यानी उसमें जो है रैट्रिक हम किसको कहते हैं, ऐसा आर्ट जिसमें हम इफेक्टिवली बोले और कहें। सही है, तो पैथोस एक आर्ग्यूमेंट होती है। सही है, तो ये पैथोस एक क्या होती है, आर्ग्यूमेंट। तो इसका जो पैथोस का काम होता है, पैथोस का काम होता है इमोशंस, इसके साथ होता है पैथोस का। Pathos is mostly concerned with emotions. Okay, it is more like concern related to emotions. Okay, and it logos is most concerned with what, logos is concerned with a sense of reasoning. Okay, argument, and then ethos is basically, yeah, and ethos is basically your which appeals to the audience based on the speaker's authority, जो speaker की authority है, like by emphasizing on an expert's credibility and authority. Okay, when you on emphasize on, okay, when you emphasize on a speaker's authority, okay, Orwell you somehow uses these techniques, okay। से ऑरवेल को भी पता नहीं होगा कि ये और वो पैथो क्या है, ठीक है। इसका एक पूरा ऐसे बन सकता है कि ऑरवेल कैसे यूज करता है थोस और पैथोस, और सही है। तो जॉर्ज ऑरवेल बेसिकली, तो इनकी जो मैं आपको और डिटेल देता हूँ। तो उसके बाद ये जो है इमोशन और बिलीफ, सही है, ये कंसर्न है इमोशन और बिलीफ के साथ, ये कंसर्न है लॉजिक और रीजनिंग के साथ, और ये कंसर्न है इथोस जो है आपका एम्फेसिस होती है एक तरीके से। आप जो है क्या करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट देते हो, एथिकल आर्ग्यूमेंट देते हो, क्या देते हो, एथिकल आर्ग्यूमेंट, आर्ट ऑफ परसुएशन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं,
It is more like art of persuasion. These three are arts of persuasion. I genuinely apologize for the echoes, logos, and sorry, logos is like head, pathos, mostly like what? Pathos, mostly like and your basic क्या कहते हैं and your logo pathos जो है किसके साथ कंसर्न होती है उसका वास्ता किससे होता है हैंड के साथ हाथ ये आर्गुमेंट ये एरिस्टोटल ये हुए हैं ये बात ये है मतलब एथोस में आप अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश कर रहे हो कि आपकी औकात क्या है इसकी ये इसमें आप तो ऑरवेल अपने ऐसे में ऑडियंस को मोटिवेट करता है टू थिंक तो ये अपने ऐसे में क्या करता है मोटिवेट ऑडियंस टू थिंक हो जाएगी वो ओके मतलब ऑडियंस को रीजन देता है क्या देता है रीजन ऑरवेल की जो सारी रीजनिंग मेंशन है कि किस तरह से डेड मेटाफोर्स ये विविडनेस लूज करें वो सारी रीजनिंग है ऑरवेल की ओके और फिर जो आपका आता है उसके बाद की बात जो होती है वो होती है पैथोस ये पैथोस एक पार्टी ओके पैथोस मतलब हम निकाल दूंगी पार्टी पैथोस क्या करता है पार्टी जैसे पॉलिटिकल मलाइनिंग ये पॉलिटिकल मैलिस जो हाईलाइट हो रहा है ऑर्वल में ऐसे में किस तरीके से ब्रूटल टेक्निक्स यूज की जा रही हैं किस तरीके से ब्रूटल सप्रेशन की जा रही है और ये सारा तो इसमें कुछ इमोटिव वोकेबलरी यूज जो ऑरवेल ने किया है वो आप मेंशन करोगे ऑरवेल हैज यूज सर्टेन इमोटिव वोकेबुलरी ऑरवेल हैज यूज सर्टेन इमोटिव last but not least then your ethos okay more like your ethics you try to express ethos try to highlight your credibility establishing the credibility to establish your credibility ethos की बात करते हैं चलो देखो ethos ओके हेलो बेसिकली ऑरवेल करता है अपना मैसेज हेल्प ऑफ ethos से कैसे करता है बाय यूजिंग से कैसे करता है बाय यूजिंग क्लियर ओके इथोस से कैसे करता है बाय यूजिंग अ क्लियर क्लियर लैंग्वेज बाय यूजिंग अ क्लियर लैंग्वेज so when he uses a clear tone he uses a clear cogent he uses clear cogent sentences okay he uses clear cogent sentences okay to establish the credibility of his idea okay to establish the credibility of his ideas and views and his own credentials okay he uses clear cogent sentences okay this is what we try to mention okay this is ethos in politics 1 minute politics and English language okay this is okay so he establishes his create credibility he gave his ethical okay and other ethos is basically see first of all structured another thing other ethos are basically see he also gives more like his literary background. Okay, he also has a certain literary background. Okay, he has a certain literary background. When he has a certain literary background, like Animal Farm and these, this already establishes his okay, this already establishes his credibility. Another thing is that he gives some concrete examples
and he dissects them. Okay, he dissects, most important sentence here, वो dissect करता है, elaborate करता है, he dissects the sentences, तो वो अपनी intelligence, अपनी expertise, सही है, अपनी expertise show करता है with the help of this. It proves that he is adroit. Okay, he is adroit. Got it? तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो डायसेक्ट करता है, हर बात को तफसील से समझाता है, तो दिस प्रूव्स दैट ही इज एडroit एट हिज वर्क, या एडेप्ट, ADEPT, एडroit सही नहीं होगा मेरे पास। So yeah, he showcases that deep understanding. Okay, उसके अलावा he establishes the credibility of his own by a structured analysis. By a what? Structured analysis. Structured analysis basically means structured analysis basically means that you are first diagnosing the problem, then you are elaborating on it. Okay, so this is entirely a tool within the passage of Orwell. Okay, ethos is mostly concerned with hands, pathos, and logos. All right. So he uses. Okay. So this is what. Okay. So now this way we try to understand the thing. Okay. And the ethical and moral appeal. Okay. Ethical and moral appeal through the his pathos. So he gives examples of totalitarianism. Okay. And then his reasoning logos. Okay. Reasoning, I told you, he gave the empirical evidence. He used the obscure text. Gave the examples, jargons, and explain how, like, ऑपरेटर्स का जो पैराग्राफ था, किसका पैराग्राफ था, द पैराग्राफ ऑफ ऑपरेटर्स गिव एन इन डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑरवेल. ओके, operators gave an in-depth point of view where he explained everything logically, that how extra workplace affects. और जो empirical evidence उसने text का दिया था, this is more like a reasoning because they were very obstruse. He gave examples of dead metaphors. This highlighted his perfect reasoning. And here he basically himself he gave, and his literary background is a big echo. Okay, is is a big part of ethos. Sorry, is a big part of structured analysis, clear, cogent sentences, and everything. Got it? This is what I wanted to explain to you. One thing is ethos, another thing is pathos, and the third. So this is reasoning of Aristotle. Now I'm progressing further. Mm, let me think of what else. Um, Now basically, mm, there is one thing. There is a book. If there's a book which we are going to learn. Okay, first of all, one thing, 1 minute, I'm opening the notes. Okay, which the article which I'm using as the reference. Okay, there is a novel of Orwell. Okay,
1984. सही है. There is a novel of Orwell of 1984. It highlights linguistic dystopia. Okay, highlights what? Linguistic dystopia. Now, this linguistic dystopia thing, let's discuss in depth. Okay, there's a which highlights linguistics. So there's an art. There has been an article. There's an article on internet. In internet, sorry, where from where you can find where you can access this linguistic dystopia. Okay, so basically, I am trying to find it so that I can explain it to you. Okay? ये मिल जाए मैं आपको बताता हूँ. ये मैं आपको एक पोइट्री बना इसके बारे में बता. Basically, as mere words, mere only words, mere words. Write it. Let's write it. Let's write it. Words, mere words. Pick words, mere words. Then it says how terrible they were. How terrible they were. How clear, vivid, and vivid and cruel. See, this is what Orwell says about the dead metaphor. यही ऑरवेल कहता है वर्ड सिर्फ अल्फाज कितने टेरिबल कितने बुरे थे कितने सा मतलब क्लियर थे विविड का मतलब है वाज़ेह सही है वन कुड नॉट escape फ्रॉम देम वन कुड नॉट escape फ्रॉम देम उनसे कोई बच के नहीं निकल सकता yet what a subtle magic yet what a subtle magic there was in them okay there was in them then it says they seem to be able to give a plastic form to formless things. Okay, this is a very deep thing. ये सारा ऑरवेल का हाईलाइट कर रहा है. Formless things. And to have a deep words, the picture of Dorian Gray में है. ये
were able to give a plastic form and to have music of their own, words का ही अपना music of their own, as that of while or mute, mere words. Was there anything as real as words? देखो, बेसिकली बेसिकली ये सारी एक पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की एक पूरी पोएट्री पिक्चर ऑफ ऑस्कार ने लिखी है। ऑस्कर ने लिखी है, ही वाज अ नॉवेलिस्ट, ओके। ही बेसिकली रोट दिस, ओके। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट, ओके। So what does he want to say? Like the words were extremely clear. Words were extremely, like they had the power to evoke emotions. They had the power to like create emotions. Okay. So basically, words are abstract. Okay, but they can make something concrete. Okay, they can make something. So this is the power of words. Okay, this is the power of words. They can plastic is concrete and words are abstract. So they are giving a concrete shape. Okay, so words just highlights how important the words are in the context that they could. Okay, they are basically like highlighting something as known as literary beauty. Okay, literary or visual beauty. All right. This is what the importance of words is. They can be, but when there is dystopia, when there are dead metaphors, the words are no longer clear and vivid, and they are can be manipulated. Okay, they can be manipulated. They can be used. हम अपने मफादात के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये क्लियर भी नहीं होंगे, विविड भी नहीं होंगे, क्रूएल इस कॉन्टेक्स्ट में कि दे कैन dual is quantism, right? Okay, you can speak the truth with the help of words. Okay, you can speak what you want with the help of the words. Okay, so basically, this is where I'm trying to explain. The words have a power to create and they have a power to destroy. Okay, they have emotion and everything in them. Okay, so this is what it is. To give a plastic, to give a concrete form to formless things. Okay, to give existence to something that does not exist. Okay, and to have a music of their own. The words have music of their own. Okay, was there anything so real as words? Okay, this is what it's trying to say. So what I'm trying to convey here is that the word is okay. So words have the power to create. Words have a power to destroy. Words have a power to nurture. Words have a power to nip to the bird. Nip to the bird. Okay, nip something to the bird. Okay, and basically, yeah. And another thing is that there is a word which can help you in the later journeys of yours. Aficionado. Aficionado means when you are enthusiastic, knowledgeable about any. Okay, so this is what the first thing is about dystopia. Now let's begin. Now
प्लीज देखने की कोशिश करना आप लोग। ये है लैंग्वेज। एक होता है यूटोपिया। ये क्या होता है? यूटोपिया। तो यूटोपिया में आपके पास सब कुछ होता है। अच्छा, सही है। यूटोपिया में ना जंग होती है ना कुछ होता है, आपके पास हर फैसिलिटी होती है विच यू रिक्वायर। और एक होता है डिस्टोपिया। एक होता है डिस्टोपिया, उसी का ही बिल्कुल उलट, डिस्टोपियन सोसाइटी। सही है, जिसे हम कहते हैं डिस्टोपिया। अब लैंग हम जिस टाइम से प्रेजेंट यूजर है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग डिस्टोपियन सिस्टम। और इफ अगर नहीं भी है तो दे आर वर्किंग फॉर दिस डिस्टोपियन सिस्टम। ओके, इसके अगर मैं हिस्ट्री बताऊं आपको तो ये होगा कि यूटोपिया जो था, सोशलिज्म की पहली इब्तदा थी यूटोपिया। तो ये सोशलिज्म की जो फलसफा था, आइडिया था, उसकी पहला आइडिया जो था वो था यूटोपिया का। तो हम कहते हैं अ प्लेस टू गुड टू बी ट्रू। ओके, यूटोपिया को हम क्या कहते हैं? प्लेस टू गुड टू बी ट्रू। क्या कहते हैं? अ प्लेस टू गुड टू बी ट्रू। हद से ज्यादा जो अच्छी है सच होने की। प्लेस टू गुड टू बी ट्रू यानी हकीकत से बिल्कुल ही कोई दूर दराज। प्लेस टू गुड टू बी ट्रू। एंड इट्स अ प्लेस टू बैड। अब ट्रू और नॉट ट्रू ये बड़ा डिबेट है, तो इसका से मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मुझे इतना पता भी नहीं है कि क्या करूँ इसके लिए मैं ज्यादा। तो क्या था? ओके, एक आइडिया जो था यूटोपिया का। सही है। इसमें यूटोपिया में हैरिंगटन है, वो है, तो एक स्मॉल एग्रेरियन इकोनॉमी, एक स्मॉल एग्रेरियन इकोनॉमी, स्मॉल एग्रेरियन। ये प्रोटोटाइप है इस परफेक्ट सोसाइटी। स्मॉल एग्रेरियन कम्युनिटी। व्हाट इज इट? अ स्मॉल एग्रेरियन कम्युनिटी। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि एक तो स्मॉल एग्रीरियन कम्युनिटी ये परफेक्ट होता है। उसके बाद फिर था बराबरी। एजुलिटेरियन किस चीज का हाईलाइट करते हैं? बराबरी। एजुलिटेरियन सोसाइटी। एजुलिटेरियन, व्हाट इज इट? इट्स बेसिकली एन एजुलिटेरियन सोसाइटी। इसमें आइडलनेस, लेजीनेस, आउट ऑफ वेल्थ वो भी चली जाएगी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक्सेसिव वेल्थ की वजह से जब इक्वालिटी होगी ना, एजुलिटेरियन मटेरियल सब कुछ की वजह से क्या होगा? जाएगा पावर्टी के लिए। पावर्टी की वजह से जो हद से ज्यादा लेबर किया जाता है, कम हो जाएगी। देयर एग्रेरियन सोसाइटी, ओके, small agrarian community, then egalitarian society, and third, there is an appropriate to also there is an appropriate leisure time. Leisure मतलब तफरीह, मजे का, सुकून का वक्त। There is an appropriate leisure time, okay, मतलब इस हद तक एक leisure time हमको फराहम किया जाएगा। अप्रोप्रिएट लेजर, सुकून का एक
अप्रोप्रिएट टाइम होता है उसके बाद प्रॉपर्टी। सही है, क्या थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, या किसी के पास भी अपनी मिल्कियत नहीं होगी। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सारी आइडियाज बताते हैं। पहली बात, देयर इज पहली बात देयर इज certainly an agrarian agriculture based economy. There is an egalitarian society, equality, appropriate measure, no proper or property happens to be not thus that means basically every 10 years there will be a lottery. Every 10 years there will be a lottery. Okay, when there is a lottery, उसके नतीजे में क्या होगा, आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब 10-10 साल। और कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन आपका एक होगा यानी कॉमन डाइनिंग। ओके, कॉमन डाइनिंग। और लास्ट गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल कौन सा? हाँ, एक था आपका रिपब्लिक, एक था आपका रिपब्लिक। एक था रिपब्लिक। दूसरा था basically there's a notion of republic and meritocracy. ठीक है, there's a combination of republic and रूलिंग का रिपब्लिक, और एक मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब है मेरिट से आना। तो उसमें पहली बात ये, कुछ रूल करेंगे, कुछ लोग हुकूमत करेंगे, कुछ लोग हुकूमत करेंगे। क्यों रूल? ओके, क्यों रूल विद द कॉन्सेप्ट, इजाजत, परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। जिनपे हुकूमत आ रही है, a few of them will rule. Okay, a few rule with the इजाजत of government. Okay, तो इसके बाद सिटीजन का व्यू होगा, इसमें होंगे सीक्रेट बैलेट्स। क्या होंगे? देयर विल बी सीक्रेट बैलेट्स वेयर यू विल गिव योर व्यू एंड यू विल नॉट रिस्क एनी persecution. ओके, यू विल नॉट रिस्क एनी persecution। ऊपर से क्या होगा? There's a secret ballot. Second of all, there will be 30 families. 30 families ने इलेक्ट किया एक मैजिस्ट्रेट। 30
family. Basically, 30 families elected a magistrate. अब इस मैजिस्ट्रेट ने क्या किया? इस मैजिस्ट्रेट ने इलेक्ट किया एक आर्क। देखो, इसका थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। इस मैजिस्ट्रेट या फाइलाज, ओके, आर्क फाइलाज। मैजिस्ट्रेट ने इनको इलेक्ट किया और फिर उसने जो है प्रिंस को इलेक्ट किया, तो वो रूल होंगे। और रूलर गिफ्टेड लोग होंगे जिनमें कुछ अल्लाह ने खूबियां दी हुई होंगे, वो रूलर होंगे। तो ये है यूटोपियन सिस्टम। अब इसी का ही उल्टा, जिसमें करप्शन हो, मेरिटोक्रेसी, नो रूलिंग, नो एजिलिटेरियनिज्म, ये नो टाइम फॉर लेजर, ये सारा है एक तरीके से। अब ये डिबेटेबल है, डिस्टोपियन है, नहीं है, ओके। प्रेजेंट डे इज मोस्टली व्हाट, डिस्टोपियन। तो लैंग्वेज पे भी उसका असर होता है। किस पे असर होता है? लैंग्वेज पे भी उसका असर होता है। एक मैं आपको ओके, बेसिकली एक कोट है जिसे हम कहते हैं, okay, there's a code known as centrality. Is centrality of language, centrality of what? Language, जबान, centrality of language, okay, is key to rebellion and repression. क्या है? rebellion and repression. repression किसको कहते हैं? जुल्म। Key to rebellion and repression. जब ये की है टू रिबेलियन एंड रिप्रेशन, तो इसके कुछ मूव है, तो जो है ब्रेन एंड टेल, सही है। ये सारी नॉवेल्स हैं 1984। अभी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। सही है। हैंडमेड्स टेल नहीं पढ़िएगा फिर, फिलिप, सही सही। 1984, ये सारे आपके आइडियाज देते हैं, सही है। ये 1984 का ही है। आपके पास का भी नाम है, एरिक क्लेयर। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसका फॉल्स। मैं प्रोनाउंस अगर गलत करूँ वहां पर, मैं पॉइंट्स अच्छे अच्छे पकड़ के दे रहा हूँ आपको। तो कॉल्स, तो कॉल्स,
थ्योरी, कार्ल थ्योरी, ये आप पेपर में लिखेंगे इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो कार्ल थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स, ओके। तो कार्ल्स थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स, हम सारी थ्योरी आज के दिन कोशिश करके पढ़ते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपके क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। 'डिस्कोर्स' का मतलब क्या होता है? बात, कॉन्वर्सेशन। अब जो है पहली बात, ये रहा, देखो, माइकल फोकाल्ट ने इसमें किया था पोस्ट मॉडर्निस्ट एक्सटेंशन ऑफ द क्रिटिकल सोशलिस्ट सोशल। अब इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, एनी बॉडी ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन, सही है, किसी के पास अगर नॉलेज होती है इन द ह्यूमन साइंसेज दैट क्लेम्स टू प्रोड्यूस डेफिनेशंस इज टुडे फेस विद द ऑब्जर्वेशन दैट सो कॉल्ड एम्पिरिकल डेफिनेशंस, सही है, चेंज हिस्टोरिकली एंड डिसकंटिन्यूस। एम्पिरिकल, क्या कहते हैं, ये काम की है, एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी, इसको जो है लैंग्वेज वाली खोलते हैं। 'बेसिकली फोकाल्स थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स' जो है वो क्या कहने मिल जाए, इसका कोई अच्छा, मैं तो बस बता सकता हूँ कि कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। तो चलो ये देखो, फोकाल्स थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स क्या कहती है कि इसका जो है सेंट्रल टू द फिलोसफी एंड सोशल, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि फोकाल्ट के नजदीक डिस्कोर्स एंड, अच्छा देखो, द सिस्टम ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स, एक ऐसा मैनर, एक ऐसा तरीका जिसमें हमें रियलिटी पता चलती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और रेंज ऑफ पॉसिबल अटरेंसेस जो हम बोल सकते हैं स्पीच में और अपनी रिप्रेजेंटेशन में, underlies any capacity to understand or argue and allocates the right and in fact govern over anything that can be said or cannot be said or known। काल के, देखो बात, बेसिकली फोकाल्ट ने क्या, फोकाल्ट की थ्योरी ये कहती है कि उसका मेजर जो फोकस था वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ पावर पे नहीं था, सिर्फ एक सोशल स्ट्रेटा पे नहीं था, उसका कोई एक गोल नहीं था और सिंगल फंक्शन नहीं था। डिस्कोर्स जो है बेसिकली वो गवर्न नहीं करती स्टेट, सही है, पर मतलब जो टोटलिटेरियन, जो जालिम रेजीम्स होते हैं, जो डिक्टेटर वाले रेजीम होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कंट्रोल हमारे पास आए। तो उसके बाद जो है फुकाल की जो बातें हैं वो ये है कि मतलब एक है डिस्कोर्स ऑफ मेडिसिन, ये डिस्कोर्स है। तो डिस्कोर्स का मतलब हम फुकाल्ट के नजदीक वो होता है जिसमें लैंग्वेज को यूज किया जाता है कि हम किसी चीज की, ये सही है, ये इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो काम की बात है वो ये है, लैंग्वेज इज यूज्ड
लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करती है बेसिकली, लैंग्वेज इज यूज टू reinforce मीनिंग, ओके, लैंग्वेज इज यूज टू reinforce मीनिंग, नॉलेज, मीनिंग, नॉलेज, सही है, ये होती है डिस्कोर्स, इसे फुकाल्ट ने क्या नाम दिया, डिस्कोर्स, सही है, मीनिंग, नॉलेज और पावर, ये थी फुकाल्ट साहब की थ्योरी, ठीक है। तो एक था डिस्कोर्स ऑफ मेडिसिन, वन थिंग इज डिस्कोर्स, तो मेडिकल नॉलेज को किस तरीके से डिसेमिनेट फैलाया जाता है थ्रू लैंग्वेज, डिस्कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, एक होती है डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स, सही है, तो द वे इन विच political ideas and ideologies are constructed and disseminated through language, including the terms and concepts used to describe governance, ये सब कुछ, गवर्नेंस और ये सब कुछ, इसकी वजह से हम ये कहते हैं, तो होता है सब्जेक्ट एंड पावर, फॉल्ट ने ये कहा कि ह्यूमन सब परसेप्शंस ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट एंड, देखो बात सुनो, यहाँ से पढ़नी शुरू करो, तो कार्ल्ट ने अपनी जो डिस्क्रिप्शन दी थी, उसमें जो था, उसमें ये था, इस डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर इज टर्निंग द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, इन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ओके, ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द पावर विच इज मीडिएटेड थ्रू देम दैट क्रिएट सब्जेक्ट, सही है, देखो सब्जेक्ट को हम किसमें, अब ये बहुत ये मुश्किल है समझाना, बस ये समझो सब्जेक्ट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, सब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में, इन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सही है, ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज, सही है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज या लैंग्वेज, और पावर वो किसके जरिए मीडिएट की जा रही है, एंड दैट क्रिएट सब्जेक्ट, देखो बात सुनो, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से एक तीन मैनर होते हैं, सही है, यार इसका जो है, देखो इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, इसमें क्या होता है, ह्यूमन सब्जेक्ट, सही है, इस परसेप्शंस ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट एंड मैनर इन विच इट इज डिटरमिन्ड, सही है, ये ह्यूमन सब्जेक्ट एंड मैनर, सही है, ह्यूमन सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट, इसको समझने की कोशिश करना बहुत, ह्यूमन सब्जेक्ट एक तो सब्जेक्टिफिकेशन होती है पावर की, एक मिनट यार, देखो वो मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए समझाना, बहुत ही फिलोसफी है इसमें, बहुत ज्यादा, एक है सब्जेक्ट, मैं माइकल फोकार्ट की बात कह रहा हूँ, एक क्या है सब्जेक्ट, क्या एक है सब्जेक्ट जनाब, तो सब्जेक्ट होता है कॉन्शियस, समझ करने वाला, सब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्शियस, सोच समझ करने वाला, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सोच समझ करने वाला नहीं होता, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑफ सोच समझ, okay, then is object which is barely conscious, okay, that is barely conscious, an object that is barely conscious, अच्छा देखो,
अब इसमें जो है एक सब्जेक्ट कॉन्शियस है, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता। सही है, रेदर दे आर एक्सपीरियंस, सही है, ऑब्जेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, सही है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट्स परसीव, ऑब्जेक्ट्स आर परसीव, सही है। तो हम ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट्स ये भी कह सकते हैं परसीव, सब्जेक्ट्स आर एक्टिव, अगर पैसिव वॉइस में ग्रामर, देखिए सब्जेक्ट्स आर एक्टिव, सब्जेक्ट्स आर active, okay? Subjects are active while objects are passive. सही है, subjects are active while objects are what? Passive. सही है, objects are passive natured. सही है, objects are passive nature. Grammatical distinction है बड़ी इनमें। अच्छा, तो सब्जेक्ट जो है मतलब ऐसी चीज है, ऐसी एजेंसी होती है, ऐसी चीज होती है जो परसीव करे। ऑब्जेक्ट जो है वो परसीव नहीं करता। तो वोकाल्ट जो है फिलोसफी में, जो सब्जेक्ट जो है वो किया जाता है, सब्जेक्ट जो है किया जाता है सेंस। सी द नोशन ऑफ सब्जेक्ट जो है बेसिकली, इसे हम कहते हैं, सही है। पर से क्या होता है, एरिस्टोटल ने भी सब्जेक्ट किया था। सही है, एरिस्टोटल ने ये सब्जेक्ट दिया था हमें वर्ड। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब आप समझ लो सेल्फ। सब्जेक्ट का मतलब क्या समझ लो, सेल्फ। अब सब्जेक्ट क्या कहलाता है, बात, बात होती है। तो अब ये तो बात हमें पता चली, कॉन्शियस बीइंग्स आर सब्जेक्ट्स। कॉन्शियस बीइंग्स आर सब्जेक्ट्स। हाउ डू वी बिकम सब्जेक्ट्स? हाउ डू वी बिकम सब्जेक्ट्स? हाउ डू वी बिकम सब्जेक्ट्स, हम सब्जेक्ट्स कैसे बन जाते हैं? Like, we agreed that consciously perceiving beings are subjects, but let's go in depth. Like, I have certain political opinions, I'm a subject. If I have certain okay view, and I have a whole agency, a host of agencies bearing on me. So basically Foucault जो है, जो कन्वे किया जा रहा है, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, और से समझने की कोशिश। देखो गौर से समझने की कोशिश करना इस बात। हाउ डू वी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी। एक सेकंड, ये एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो है हमने ये कहा, ये ओके, सब्जेक्ट सेल्फ है, सब्जेक्ट इज एक्टिव, ओके, परसीविंग थिंग, परसेप्टिंग सेल्फ, ओके। अगर हम सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा परसेप्टिंग एजेंसी, एक्टिव परसेप्टिंग एजेंसी। अब अगर मैं गौर करूं, अगर मेरे कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन है, तो या अगर व्यूज है, अगर मेरे कुछ राष्ट्रीय ख्याल और उनको कुछ जो है मतलब, देखो कुछ मेरे साथ हैं, तो कुछ मेरे साथ preference है। If I have certain preferences, political,
I have preferences. I have a certain political thought. I have a certain political, okay, उसके बाद अजान में वो ये होती है. अब I have a state bearing on me. Okay, if I have something influence state. Okay, state everything. Okay, church तुम इस्लाम नहीं, इस्लाम अच्छा ही वो करता है इन्फ्लुएंस. ये स्टेट, इकोनॉमी, चर्च की बहुत गलतियां थी. इवन माई सेल्फ. तो ये सेकंड मोशन लेकर आ रहा है फोकाल्ट, वो ये है कि फोकाल्ट भी कह सकते हैं इसे कि ब्रिंगिंग इनटू द वर्ड सब्जेक्ट. सही है. ग्रामेटिकली तो एक सेकंड मोशन आ जाएगा. सब्जेक्ट एक्टिव रहा, सब्जेक्ट कॉन्शियस रहा, सब्जेक्ट सब कुछ रहा. पर अब सब्जेक्ट जो लफ्ज है वो हो जाएगा वर्ब. अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्ब. कैसे? जैसे सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ किंग, ही सब्जेक्टेड हिम टू दिस. तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब. जैसे सब्जेक्ट टू मोनार्क, तो मोनार्क basically authority of the king is now replaced by agencies and other things. Okay, so basically that we have automatically become subject because we are subjected. Okay, subject because we are subjected. Okay, basically there is a complication. अब क्या होगा कि first of all I am have become an object. Okay, I am under certain influences. Secondly, I'm a the sense because I'm in the perspective. Okay, अब ये था तो माँ अब objective जो है और ये सारी in the end we create तो मुख्तलिफ डायमेंशन होते हैं पावर. ये फोकाल्ट का मतलब लैंग्वेज पे आता है. सही है. ये फोकाल्ट ने एक आइडिया दिया था, थोड़ी सी मुश्किल बात थी पर इंशाल्लाह हो जाएगी. तो समराइजेस हिज perception of the human subject and manner in which, ये मैंने सारा समझा, is determined by power structure. So Paul rejects the humanist notion of a free and rational subject for a view as it is determined by a system of power relations. सही है. मैंने पावर रिलेशंस भी समझा दी. तो पावर किससे डील की जा रही है? ऑपरेशन से नहीं, जुल्म और सितम से नहीं, बल्कि इंडिविजुअल. उसने एक डबल मीनिंग भी दे दी सब्जेक्ट की. सही है. जिस कंट्रोल. दूसरी बात जो है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर इज टर्निंग द सब्जेक्ट इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज या एन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज का इसका भी जो हमारा मेन पॉइंट है वो है ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफ द पावर क्रिएटेड थ्रू देम एंड दैट क्रिएट. ये अब सब्जेक्ट कैसे बने? अब देखो, ऑब्जेक्टिफिकेशन के तीन मैनर है जैसे हम सब्जेक्ट बने, जैसे हम गुलाम हैं. पहली बात जो है मोड्स ऑफ इंक्वायरी जो है, say a modes of inquiry aspiring to the status of science. Say a mode of inquiry to the science. अब देखो, ऑब्जेक्टिव नॉलेज ये क्या होती है? ऑब्जेक्टिव नॉलेज. सही है. ऑब्जेक्टिव नॉलेज इन अ सेंस के, देखो, refers to how much an individual. ऑब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब क्या होता है? ओके, एविडेंस, हैविंग एविडेंस फॉर थिंग्स. ओके, तो बेसिकली ये जो होती है ऑब्जेक्टिव नॉलेज की, अगर हम बात की जाए, ऑब्जेक्टिव नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज. ऑब्जेक्टिव नॉलेज हम कहते हैं कि नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ prejudice, bias, opinion. Okay, knowledge that is free from bias, that is free from views. Okay, and that is factual without any personal opinion. So we are basically objectifying the life itself because science is related to life. This Foucault's how much separation and distinction has to do with separation, such as drawn between mad and sane. Okay, so basically madness and civilization. The third mode has to do with which individuals stand by identifying themselves in relation to larger structures. इस structure के साथ relation ये गलत है बहुत बात है.
जो इस्लाम कहता है वही। तो ये मैं ऐसी आइडिया बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रैशनैलिटी के मुख्तलिफ आइडियाज देता है, सही है। ये था। अब फुकाल के लैंग्वेज की क्या यूज। तो इसने जो थ्योरी दी थी, बेसिकली ही सेड टू थ्री थिंग्स। ही फर्स्टली सेड, हम लैंग्वेज के लिए करते हैं नॉलेज एंड ट्रुथ, सही है। हम लैंग्वेज के थ्रू, तो बेसिकली वी आर कंस्ट्रक्टिंग थ्रू द लैंग्वेज अ सर्टेन नॉलेज एंड ट्रुथ, ओके, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, knowledge, okay, Bismillah. So our life, but it doesn't, basically it is discourses और कल ने क्या बताया था, discourses, discourses, सही है। इसने डिस्कोर्स का बताया था, मतलब से मैंने भी बताया भी था डिस्कोर्स क्या होता है, सही है। तो डिस्कोर्स में आप नॉवेल, सही, और ये भी बताती है कि कैसे लोग जो है वो एक नॉलेज पूल बनाते हैं, ताकि आपका जो है पावर वो कर सके, ताकि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि पावर, जैसे विचेस की पावर, विचेस कहा जाता है कि वो पुअर थी, एक सर्टेन उसके साथ नहीं चलती थी। तो एक उन्होंने पावरफुल मेंबर्स ने एक पूल बना दिया नॉलेज का, जिससे बहुत सी को भुला वजह मारा गया, सही है। तो इसकी वजह से बेसिकली व्हाट इट इज दैट दोज इन पोजीशन ऑफ पावर इन्फ्लुएंस, तो वो जो है पूल ऑफ नॉलेज को अफेक्ट करते हैं, सही है, और इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसकी वजह से जो है एक मतलब एक तो उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और ये सब, जैसे वाइट मेल डॉक्टर की ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है ब्लैक फीमेल नर्स की, सही है। पर इवन तो ये गारंटी नहीं है, पर ऑक्यूपेशन, जेंडर और रेस इन्फ्लुएंस कर रहा है, सही है। सो दिस इज डिस्कोर्स इज क्रिएटेड बाय दोज इन पावर। तो जो फ्रेंच बोर्गियाजी थी, तो उनके उन्होंने अपने जो है मतलब जैसे पावरफुल नॉलेज, लोग जो है अपने लिए नॉलेज बनाते हैं जो मतलब उनको बेहतर समझ आती है। तो अब जो है इसे हम कहते हैं सॉवरेन पावर, सही है। पेस्टोरल डिसिप्लिनरी बाय पावर, मैं वापस कहना से कुछ बहुत बातें गलत की है, मैं ऐसी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ उसका, समझा रहा हूँ, सही है। तो ये जो है बेसिकली कंस्ट्रक्टेड डिस्कोर्स बेनिफिट्स दिस पावरफुल इन सोसाइटी, ये ऑरवेल से बात मिलती जाती है, ठीक है। तो ये फुकाल्ट की थ्योरी तो मैंने आपको बता दी, अब हम कल क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, अब हमने फुकाल्ट पढ़ लिया से, अब हम फुकाल्ट की एक और थ्योरी पढ़ेंगे, डिसिप्लिन एंड, सही है। पढ़ेंगे बेसिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू स्टडी डिसिप्लिन एंड पनिश, ओके, या हम करते हैं तो डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश और नॉम चॉम्स्की की पॉलिटिक्स एंड पावर, ओके। इसकी थोड़ी थोड़ी समरीज पढ़ेंगे। और इसके बाद
चैप्टर ऑफ डिस्कोर्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और मैं जीपीटी से कुछ भी नहीं देख के बता रहा, मैं बस थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ उससे, बाकी मैंने खुद सारी रिसर्च थोड़ी बहुत जो आइडिया है, ठीक है। यू कैन कंफर्म इट द चेक्स प्लाजरिज्म क्या कहना है। उस टॉपिक्स का कुछ आइडिया लिया है मैंने, ठीक है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ। अभी तो टोटलिटेरियनिज्म पढ़ना है, इसमें 1984 में आसानी होगी समझना, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज गाइस, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कमेंट। और इंडिया आगे निकल रहे हैं, लिटरेचर नहीं रहने वाला।